یہ بتائیے کہ آپ نے ڈی ایچ اے لاہور، گجرانوالہ، اسلام آباد، یہ آپ نے ان کو کیسے پایا اور آپ آنے والے وقت میں ڈی ایچ اے کوئٹہ کو کیسے پا رہے ہیں؟ آنے والے وقت میں ڈی ایچ اے کوئٹہ کیسا ہوگا؟ کیا سیکٹر بی، سی، ڈی، ای کے اندر بھی کیا قسم کی فیسلٹیز دی جائیں گی کہ اس کی بھی ویلیو برقرار ہے؟ جو فائلنگ جو پرچیز کریں یا جنہوں نے ایلوکیشن کروا چکی ہے ایک کینال والے، سر میں ڈی ایچ اے کوئٹہ کے بارے میں بات کروں تو اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ نے کینال کا بتا دیا، ڈیپٹ کا بتا دیا، سر 5 مرلہ، 8 مرلہ، 10 مرلہ، 16 مرلہ کا کیا فیوچر، اس کا کیا فیوچر سر آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک کامن پرسن ایک اچھے ڈیلر کا انتخاب کیسے کریں؟ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ڈی ایچ اے کوئٹہ کے پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے دا پفن کلب جو چینل یوٹیوب میں اس کو آپ نے کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے محمد طیور، دا پفن کلب کچن میں آپ کو خوش آمدید۔ جناب میں موجود ہوں لاہور میں اور میرے ساتھ موجود ہیں عاطف اقبال صاحب جو کہ سی ای او ہیں ای پراپرٹی کے، جو کہ نہ صرف ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ایتھورائزڈ ڈیلر ہیں، ساتھ ساتھ لاہور کے، ملتان، گجرانوالہ، پشاور، بہاولپور کے۔ تو ماشاءاللہ ان کی خدمات عوام کے لیے رہی ہے۔ تو آج ہم ابھی ان سے ایک ڈی ایچ اے کوئٹہ کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے ایک شارٹ انٹروڈکشن دیتے ہیں عاطف اقبال صاحب سے اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ سر ایک شارٹ انٹروڈکشن کائنڈلی آپ اپنا دیجیے گا اور کائنڈلی ڈی ایچ اے کے بارے میں اسپیشلی ذرا بتائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام عاطف اقبال ہے اور میرا تعلق کی پراپرٹی سے ہے۔ میں 2004 سے اس شعبے سے وابستہ ہوں اور میں ڈی ایچ اے لاہور، گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، پشاور، کوئٹہ کا آتھرائزڈ ایجنٹ ہوں۔ گزشتہ 2004 سے لے کر آج تک میں نے جتنا بھی کام کیا، کچھ اور ایریاز میں بھی میں نے کام کیا اس کے علاوہ ڈی ایچ اے کا، لیکن سب سے اچھا میں نے ڈی ایچ اے کو پایا۔ ڈی ایچ اے پاکستان میں ایک ایسا برانڈ ہے جس پر ہر شخص جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے، خاص طور پر ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں جو کہ پاکستان میں پراپرٹی کی فیلڈ میں بہت بڑے انویسٹرز ہیں اور وہ اپنی جو لائف ٹائم کی سیونگ ہوتی ہے وہ پاکستان میں لا کے لگانا چاہتے ہیں۔ ساری عمر وہ وہاں کماتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یا اپنا آخری وقت جو ہے وہ کم از کم پاکستان میں گزاریں۔ اس کے لیے وہ پاکستان میں انویسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج سے کرتے چلے آ رہے ہیں، شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سب سے اچھی بات اس خاص طور پر ڈی ایچ اے برانڈ میں یہ ہے کہ نہ تو یہاں کوئی ایسی ٹائٹل کا ایشو ہوتا ہے، نہ کوئی ڈاکومنٹیشن کا ایشو ہے، نہ کوئی ڈپلیکیشن کا ایشو ہے، نہ قبضے کا ایشو ہے۔ ایک بالکل سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ ہے۔ پرٹیکولرلی ڈی ایچ اے کوئٹہ کی بات کر لیں تو میں اپنے دوستوں کو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ بلوچستان میں یہ پہلا ڈی ایچ اے ہے جو ابھی تک آیا ہے، اور اس کا فوکس جو ہے وہ صرف کوئٹہ کے لوگوں کا نہیں ہے بلکہ پورے بلوچستان کے جو بلوچ لوگ ہیں وہ، اور بشمول پورے پاکستان کے اور بشمول پوری دنیا میں جہاں جہاں بلوچ موجود ہیں وہ یقینی طور پر اس کے پوٹینشیل کسٹمر ہیں، اور نہ صرف بلوچستان کے لوگ بلکہ پورے پاکستان کے لوگ۔ تو اس پروجیکٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور کیپٹل اسٹیٹس ہونے کے حوالے سے اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد جس طرح سے یہ کیپٹل اسٹیٹس کے ساتھ ہیں، اسی طرح پشاور ہے KPK میں، تو بلوچستان میں اس وقت جو ڈی ایچ اے کوئٹہ ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آنے والے وقت میں کوئٹہ کے لوگوں کا لائف اسٹائل جو ہے وہ بالکل چینج کر دے گا۔ سر کچھ سوالات ہیں میرے۔ ایک تو میں آپ لوگوں کو جناب ایک بات بتاتا چلوں، آپ لوگ ساتھ ایک ویڈیو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کی اسکرین پہ۔ عاطف اقبال صاحب وہ فرسٹ ہیں جنہوں نے یوٹیوب پہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کی ویڈیو ڈالی ہے، اور سمجھے میں انہیں سے انسپائر ہو کے جو ہے پھر میں نے آپ کی ڈی ایچ اے کوئٹہ کو فالو کیا ہے۔ تو یہ استاد بھی ہے میرے۔ تو عاطف صاحب آپ سے سر کچھ سوالات کریں۔ سر پہلے ذرا ڈی ایچ اے کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، اب سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ڈی ایچ اے لاہور، گجرانوالہ، اسلام آباد، یہ آپ نے ان کو کیسے پایا اور آپ آنے والے وقت میں ڈی ایچ اے کوئٹہ کو کیسے پا رہے ہیں؟ دیکھیے ڈی ایچ اے کا سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ڈی ایچ اے میں زمین جو لینے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، ڈیفینیٹلی، اور وہ بڑا سادہ اور بڑا آسان سا ہے۔ میں نے جب سے ڈی ایچ اے میں کام شروع کیا تو مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ ڈی ایچ اے سے سالڈ اور کنکریٹ پروجیکٹ پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ بہت سارے پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں، ان کے پروجیکٹس آتے ہیں، ان میں نقشے آ جاتے ہیں، چیزیں بک جاتی ہیں، فائلیں بن جاتی ہیں، پرنٹنگ پریس میں پرنٹنگ فارم جو ہے جس کو ہم بکنگ فارم کہتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں اور وہ جتنے مرضی آپ بیچتے چلے جائیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ پیچھے زمین کا وجود ہے یا نہیں۔ ڈی ایچ اے میں جو سب سے انٹرسٹنگ اور اچھی بات ہے وہ یہی ہے
जो सेफ एंड सिक्योर कि यहाँ फाइल के नीचे ज़मीन का वजूद मौजूद है। अब हमें समझना होगा किसी भी DHA में जब एक एरिया DHA अपना नोटिफाई करता है, पर्टिकुलरली अब हम कोयटा की बात कर लेते हैं, जैसे DHA कोयटा ने 8,000 एकड़ जो है जोन ए के लिए नोटिफाई किया, तो DHA अब उसके लिए ज़मीन ले रहा है, जैसे जैसे ज़मीन आती जा रही है उसके लिए DHA फाइल देता जा रहा है। यही फुटफॉल है हर DHA के। लाहौर DHA जो है जब ये 80s के टाइम में शुरू हुआ तो उस वक्त लोग कहते थे वाटर रोड से दूसरी तरफ कौन इतनी दूर जाएगा और कौन वहाँ जाकर रहेगा, लेकिन आज इस वक्त जब ये इंटरव्यू हो रहा है तो हम इस वक्त DHA फेज 6 में बैठे हैं जो बेदिया रोड से दूसरी तरफ है, जहाँ इस वक्त DHA का हेड ऑफिस भी आपको पता है कि मौजूद है, हमारे ऑफिस के बिल्कुल पीछे DHA का हेड ऑफिस भी है। तो आज ये वो जगह है जहाँ कभी हम आज से 10 साल पहले जब किसी को लेके आते थे या 7-8 साल पहले, तो कोई भी शख्स ये मानने को तैयार ही नहीं था कि यहाँ ऐसा एक प्रोजेक्ट होगा और यहाँ इस तरह का रोड नेटवर्क होगा और यहाँ इस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी। लेकिन आज जब वो लोग आगे देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की। अच्छा, ये इस मैं DHA फेज 6 की बात नहीं कर रहा, ये हर DHA का फेज जो आया वो इसी तरह आया। फेज 1 कंप्लीट हुआ, फिर 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह जो DHA का लेटेस्ट प्रोजेक्ट लाहौर में चल रहा है जो अब नियर पोजेशन है वो DHA का फेज 9 है, और इसके अलावा टोटल DHA का 13 फेजेज है लाहौर में, जिसमें से DHA 13 और DHA 10 अभी नहीं बना हुआ, बाकी सारे फेजेज बन चुके हैं और 9 प्रिज्म जिसको हम कहते हैं उसका पोजेशन अभी आने वाला है। अच्छा सर, एक बात मैंने आपसे पूछनी है, जिस तरह भी आपने जो मुझे फेजिंग भी कराया DHA का, तो जब मैं यहाँ पे जब मैं डेवलपमेंट देखता हूँ, इस्लामाबाद हो गई, लाहौर हो गया, ठीक है ना, जब ये सारी फैसिलिटीज जब मैं देखता हूँ तो इसको मैं एक एजम्पशन लेता हूँ DHA कोटा के लिए, ठीक है। देखिए पेशावर को भी अभी आप देखें तो आप क्या समझते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस में ये बताइए कि आने वाले वक्त में DHA कोटा कैसा होगा, क्या उसकी लुक होगी, क्या उसके अंदर फैसिलिटीज होंगी, आया ये टाइम अपॉर्चुनिटी परचेजिंग का है कि नहीं है, काइंड सर प्लीज जरूर बताएं। जिस तरह से हमें पता है कि DHA की फाइल जो है वो अभी एक वक्त में 22 की भी रही है, और जब ये 22 लाख रुपए की फाइल मिल रही थी तो हमने अपने लोगों को उस वक्त भी गाइड किया कि DHA ने खुद इंस्टॉलमेंट प्लान में 57,60,000 रुपये में बुक किया है, जिसका 10% आपने एक महीने में देना है और अगले महीने में आपने दोबारा 10% देना है, जो कि कोविड की वजह से थोड़ा सा रीशेड्यूल हुआ। पहली इंस्टॉलमेंट 8% थी और दूसरी इंस्टॉलमेंट 12%। तो अगर हम 57,60,000 को देखें तो उसका 10% जो है तकरीबन 5,76,000 का होता है, जिसको अगर हम डबल कर लें तो तकरीबन ये 11.5 लाख रुपए के करीब रकम बनती है। तो उस वक्त भी हमने दोस्तों को कहा कि अब एक प्रोडक्ट DHA खुद लेकर आया है जो कि सिर्फ 2 महीने के अंदर आपका 11-11.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट की शक्ल में चला जाएगा, जबकि फुल पेड आपको 22 या 23 लाख रुपए का उस वक्त मिल रहा था। तो इसके साथ कंपेयर करना बड़ा आसान हो जाता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हाफ पेमेंट के ऊपर और मजीद आप तरफ और ऐड कर लें तकरीबन जो कि 11.5 लाख रुपए तो 23 लाख रुपए बनता है, आपको पूरा एक 4500 स्क्वायर फुट का प्लॉट मिल जाएगा। और कोयटा के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 600 कुछ रुपये स्क्वायर फुट ये तकरीबन उस वक्त पड़ रहा है, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी ऐड कर लें तो 11-1200 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से एक मुकम्मल प्लॉट जिसमें जिंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। लेकिन DHA एक सोसाइटी का नाम है। कोयटा में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कोयटा में जरबून है, कोयटा में चिल्टन है, चमन है, शहबाज टाउन है, जिना टाउन है, लेकिन उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है जो कि सोसाइटी की डेफिनेशन में ही नहीं आती। देखिए सोसाइटी की डेफिनेशन में ये चीज़ नहीं होती कि वहाँ रोड बना दिया आपने और सीवरेज डाल दिया है और अब वहाँ लोग रह रहे हैं। दिस इज नॉट सोसाइटी, ये सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी में क्या है, कम अज़ कम जो बुनियादी सहूलियात है वो तो हर जगह है, बिजली पानी क्या है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा स्कूल हो, एक अच्छा कॉलेज हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो, एक अच्छा हॉस्पिटल हो, एक अच्छा क्लब हो, पार्क्स हो, प्ले ग्राउंड हो, यानी तमाम वो ज़रूरियात ज़िंदगी या तमाम वो सहूलियात हों जो है कि अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए मानी जाती है, जो कि दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो DHA एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मुहैया करता है। ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल हम लाहौर में देख रहे हैं, ऑलरेडी हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं, कराची में देख रहे हैं। अगर हमें रिसेंट डेवलपमेंट्स में देखना है तो मुल्तान एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यहाँ बैठे हुए जब हम मुल्तान के मैप को भी डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि मुल्तान का मैप इस तरह से मैप बनाया गया है कि हर सेक्टर के अंदर कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे बुनियादी जो सहूलियात हैं वो हर सेक्टर में है, मस्जिद है, पार्क है और सेक्टर शॉप्स हैं, जो कि छोटी दुकानें होती हैं, डेली ग्रॉसरी आइटम, दही, अंडे, डबल रोटी, लॉन्ड्री, नान, मतलब रोटी वगैरह इस तरह की शॉप्स के लिए। बड़े कमर्शियल तो हमेशा मेन रोड पर होते हैं जहाँ आपको अदर ब्रांड मिल जाते हैं, लेकिन वो आइटम जो खातून खाना जो घर का किचन चला रही होती है उनकी जरूरत होती है, तो उनके लिए ये बिल्कुल
वॉकिंग डिस्टेंस पर DHA की ये शॉप इस तरह से बनाई जाती हैं एक कम्युनिटी के अंदर, ताकि हर घर से ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 मिनट के डिस्टेंस पर बाय वॉक जाकर आप वो चीज़ें खरीद सकें और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसके अलावा ज़ाहिर है फिर बड़े मॉल के ब्रांड आ जाते हैं जहाँ पे आप ग्रॉसरी जो है वो मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन डेली की बुनियाद के ऊपर आसानी ये चीज़ें, सब्जी की दुकान वगैरह, गोश्त वगैरह ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये तमाम सहूलियात एक छत के अंदर, एक छत के नीचे होना, इसका नाम जो है वो DHA है। और मैं समझता हूँ DHA कोयटा में भी जिस तरह हमें बताया गया है कि इसका 320 फुट का बुलेवार्ड है, 180 फुट का इसके एवेन्यूज़ हैं और इसके 80 फुट के बड़े बुलेवार्ड रोड हैं, फिर 60 फुट के इसमें स्ट्रीट्स हैं और सारी अंडरग्राउंड वायरिंग है। तो वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आज तक शायद कोयटा के लोगों ने ना देखी हो एक सोसाइटी के अंदर, वो इंशाल्लाह उनको DHA कोयटा में मिले। सर जानना ये चाह रहा था कि अभी आपने जितना खुद ही बताया कि मुल्तान को देख लें, अहमद शाह लाहौर को देख लें, अभी लोग ये भी जानना चाहते हैं जी कि आपने सेक्टर ए तो बता दिया, क्या सेक्टर B, C, D, E के अंदर भी क्या इस तरह की फैसिलिटीज दी जाएंगी कि उसकी भी वैल्यू बरकरार रहे? बिल्कुल, देखिए DHA जब भी अपना प्लान लेकर आता है तो वो बड़ा बैलेंस करके लेके आता है। ऐसे नहीं होता कि एक ही सेक्टर में सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अभी इस वक्त मैं फेज 6 में बैठा हूँ, यहाँ पर जो गोल्फ कोर्स है वो सेक्टर K में है, यहाँ पर जो बड़ा मॉल बन रहा है डॉल्फिन, हमारे पीछे बन रहा है डॉल्फिन मॉल कराची में, वो सेक्टर A में है। इसी तरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, CCA सेंट्रल कमर्शियल एरिया जिनको हम कहते हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर है। हर सेक्टर में सेंट्रल कमर्शियल एरिया नहीं है। इसी तरह मेन बुलेवार्ड के ऊपर सारा MD कमर्शियल है, जहाँ पर डिफरेंट बैंक्स हैं। इसी तरह क्लब है, किसी सेक्टर में क्लब है, किसी सेक्टर में जैसे गोल्फ कोर्स है, किसी सेक्टर में पार्क है, किसी सेक्टर में स्टेडियम है। तो हर सेक्टर को DHA का इंपॉर्टेंस देता है। किसी सेक्टर में हॉस्पिटल है, किसी सेक्टर में डिस्पेंसरी है, मतलब डिफरेंट फैसिलिटीज आपको वो स्प्रेड ओवर करता है ताकि हर इलाके की एक अपनी इंपॉर्टेंस हो। अब जैसे जामिया मॉस्क है, हमें पता है DHA कोयटा में जहाँ पर हमारा मेन बुलेवार्ड जाके ख़त्म होता है, आगे जहाँ वो इस वक्त एक राउंड अबाउट बन रहा है, उस एरिया में हमें बताया गया कि वहाँ एक जामिया मॉस्क आएगी। अब हर सेक्टर में एक अपनी मस्जिद होगी, लेकिन एक जामिया मस्जिद जो है वो ऑलरेडी उस जगह पर डिज़ाइन की गई। तो DHA अपने हर सेक्टर की इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए और बैलेंस करने के लिए तमाम फैसिलिटीज़ को इस तरह फैलाता है कि आपको कभी ये फील नहीं होता कि यार मेरे सेक्टर में ये चीज़ और वहाँ नहीं। जैसे DHA 9 प्रिज्म है, उसके सेक्टर D में गोल्फ कोर्स है, तो सेक्टर Q में 3 पार्क है। इसी तरह हॉस्पिटल है, वो एक सेक्टर में है, कोई और क्लब है तो वो दूसरे सेक्टर में है, जिससे हर सेक्टर की अपनी बैलेंस करके रखा। अच्छा सर, लोग जानना चाहते हैं जो 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 फाइलिंग जो परचेज करें या जिन्होंने एलोकेशन करवा चुकी है एक कैनाल वाले, सर मैं DHA कोटे के बारे में बात करूँ तो इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसके पर आएंगे, अपना डिवीजन बता देंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो DHA कोटा में पहली दफ़ा ओपन फाइल का ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। जनरली DHA में फाइल ट्रांसफर होती है और आपके नाम पर होती है और एलोकेशन फाइल होती है। हम हर प्रोजेक्ट को अगर उसकी टाइम लाइन से डिस्कस करें तो ये बेहतर होगा। इस वक्त नए प्रोजेक्ट जो है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पुराने DHA कहलाते हैं। नए प्रोजेक्ट में गुजरांवाला है, मुल्तान है, भावलपुर है, पेशावर है और कोयटा है। इसमें सबसे अच्छा इस वक्त जो हमने देखा है परफॉर्मेंस में रेट के हवाले से वो DHA पेशावर ने परफॉर्म किया है, क्योंकि इन्वेस्टर का फोकस ये होता है कि मैंने ये रुपया लगाया है, ये कितनी देर में ग्रो करेगा। एक है एंड कंज्यूमर जिसको रहना है, मैं अभी उसकी तरफ नहीं आ रहा। अभी हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोग DHA कोयटा में कर रहे हैं और करेंगे, और वो किसको बेस बनाएंगे कि हमारा रेट कितना अप्रिशिएट किया। तो पेशावर को हम इस वक्त बेस्ट परफॉर्मेंस पे देख रहे हैं, उसके सेकंड फुटफॉल पे ऊपर जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो DHA मुल्तान है। तो ये जो आपका सवाल है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी DHA एलोकेशन करवा ली है, मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि वो बैलेट तक कम से कम अपने एलोकेशन को लेकर जाएँ, और बैलेट का अगर चांस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं अगर वो एंड कंज्यूमर के तौर पर जा रहे हैं। अगर वो नहीं लेना चाहते तो वो बैलेट से पहले बेच सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि जब हम अपनी मर्जी की लोकेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बैलेट से पहले आपको ये नहीं पता कि आपको प्लॉट कहाँ मिलेगा, किस लोकेशन में आएगा। आप बुलेवार्ड पर आएंगे, आपका कॉर्नर होगा, आपका फेसिंग पार्क होगा, या आपका बिल्कुल एंड बाउंड्री पर होगा, वो आपकी लक है। और वो जाहिर है DHA के अंदर एक बड़ा फेयर बैलेट होता है, और जिसको जहाँ मिले वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप बिफोर बैलेट सेल कर दें, और बैलेट के बाद अपने पिन पॉइंट के मुताबिक अपनी मर्जी की सिलेक्शन, अपनी मर्जी की लोकेशन है। लेकिन उसके लिए फिर हमें तैयार रहना होगा कि हमें एक एडिशनल अमाउंट जो है वो स्पेंड करनी पड़ती है। जैसे मैं DHA मुल्तान की एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ एग्जांपल से कि DHA मुल्तान की फाइल जो है वो बैलेट से पहले 44-45 लाख की थी।
जैसे ही वैलिड हुआ कुछ प्लॉट जो है ज़ाहिर है वो लोअर लोकेशन में चले गए और वो 30-35 की ब्रैकेट में आ गए, लेकिन कुछ प्लॉट जो है वो 70-75 की ब्रैकेट में टच हो गए। अब जो शख्स ऐसा था जिसने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना था और उसको रिहाइश अगर नहीं भी रिक्वायर्ड थी या उसको रिहाइश रिक्वायर्ड भी थी, तो उसने डिसीजन लिया कि ठीक है मैं वैलिड से पहले इसको बेच दूंगा और वैलिड के बाद जो रेट होगा अच्छे प्लॉट का वो मैं दूंगा, मैं पेड। और लोगों ने उसके लिए पे किया, 45-44 लाख का बेचा और बाद में 10-15-20 लाख का और डालकर एक अच्छी लोकेशन ले ली। ये बात हमें मद्देनजर रखनी होगी कि चाहे आप टॉप लोकेशन उठा लें, इनिशियली ये गैप ज्यादा होता है हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट में। DHA बेसिक की अगर बात करें यहाँ बैठे में, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ प्लॉट जो है वो जब बैलेट हुआ तो 50-60 लाख का भी था और प्लॉट जो है वो 20 लाख का भी था, यानी हाफ से भी कम प्राइस पे था। लेकिन आज इसी DHA बेसिक में 3.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक प्लॉट मिलता है, यानी अब उनका वो गैप कम हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गैप और कम होता जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन का फ्लो बढ़ता है, जो साथ साथ प्रोजेक्ट होते हैं, इसको आप कोयटा से एग्जांपल ले लें, एक वक्त में आपकी जो चमन हाउसिंग स्कीम है वो बिल्कुल DHA ऑफिस के पास है, उसका रेट बहुत ज्यादा होगा। और चिल्टन जो बाद में आई है थोड़ा आगे है एयरपोर्ट रोड के ऊपर, एयरपोर्ट के पास, वो शायद थोड़ी सस्ती होगी, लेकिन आज चमन और चिल्टन अब एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं रेट वाइज, क्योंकि अब वो आबाद हो चुके हैं। जैसे जैसे एरिया आबाद होता चला जाता है फिर वक्त के साथ साथ ये गैप कम होता जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी दोनों किस्म के लोगों के लिए, अगर कोई होल्ड करके अपने एलोकेशन को आगे लेके जाना चाहता है तो उसको भी फायदा है, और अगर कोई बैलेट से पहले बेचकर बाद में अपनी मर्जी की लोकेशन लेना चाहता है तो दोनों सूरतों में उसको फायदा है। ये सर बहुत सारी प्रैक्टिस हैं जो वाकई हमें चाहिए होती हैं और एक इन्वेस्टर की बहुत ज़्यादा ये बात जो है वो मायने रखती है। सेकंड सर मैं आपसे जानना चाहूँगा व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अर्ली बर्ड? अर्ली बर्ड जो है मैं समझता हूँ ये तो DHA कोयटा का माथे का झूमर है, जिसको हम कहते हैं ना कि माथे का झूमर है। लेकिन जब वो DHA कोयटा लॉन्च हुआ तो 2018 जो वीडियो अभी आप मेरा देख रहे हैं, तो ये हमने वीडियो बनाया था 2018 जुलाई में, और कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद थी, तो उसके हफ्ता डेढ़ के बाद बकरा ईद आनी थी, तो वीडियो बना के मैं वापस लाहौर आ गया। फिर जब हमने इसको उसको वीडियो को एडिट करने के बाद अपलोड किया तो ये नवंबर का महीना था। तो ये फर्स्ट एवर ओवरव्यू था जो DHA कोयटा का हमने दिया। तो DHA कोयटा जो है उस वक्त जब आया था तो हमें लोग पूछते थे, हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर, चूँकि हम 2004 से मैं ऑनलाइन eproperty.pk के नाम से मेरी वेबसाइट है, तो हमारे पास ज़्यादातर ओवरसीज क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। तो वो पूछते थे कि यार आप हमें DHA कोयटा के हवाले से कन्विंस कर रहे हैं, आप हमें कोई रेफरेंस देना, बताएं हम DHA कोयटा में क्यों इन्वेस्ट करें। तो हमारे पास रेफरेंस क्या था? शहबाज टाउन, जिना टाउन, चिल्टन, चमन, कैंट, ये एरियाज थे, गार्डन टाउन, जैसे मुख्तलिफ जरगोन स्कीम। तो अब ये हमारे पास हवाला जात थे जो हम हवाले देते थे कि जी चूंकि कोयटा शहर में प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर फुटों के हिसाब से बिकती है, और 4-6 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट से लेकर 18-20 हज़ार स्क्वायर फुट तक रिहायशी स्कीमों का रेट जो है वो तकरीबन जा रहा है। तो DHA कोयटा जो है वो अभी सिर्फ 600 रुपये स्क्वायर फुट है, और यकीनी तौर पर डेवलपमेंट चार्जेस देने के बाद जो कि आपने इंस्टॉलमेंट में देने हैं वो भी आपने नकद नहीं देने, आपने किस्तों में देने हैं। तो ये जो 12-1300 रुपये स्क्वायर फुट आपको मिल रहा है ये जस्ट लाइक फ्री, यानी एक फ्री किस्म की इन्वेस्टमेंट जो बहुत नॉमिनल प्राइस की आपको मिल रही है। तो उस वक्त हम लोगों को हवाला देते थे, लेकिन 2021 में फरवरी में DHA ने अर्ली बर्ड लॉन्च किया, जो कि बहुत ही DHA का मैं समझता हूँ दानिशमंदाना स्टेप था, और बहुत ही वाइडली DHA की मैनेजमेंट ने इसको टेकअप किया कि 8,000 एकड़ के प्रोजेक्ट को, जिस तरह DHA मुल्तान 9,000 एकड़ का प्रोजेक्ट है, बजाय कि हम इसको इकट्ठा हिस्सा लेकर आए, बेहतर ये है कि हम इसको एक पहले प्रोजेक्ट के तौर पर अर्ली बर्ड के, जो कि सिर्फ 1500 प्लॉट के इसमें कैपेसिटी थी, और 1500 प्लॉट जो है जिस तरह कि आपको पता है कि ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर हमें वो फॉर्म फिल करना था और डेवलपमेंट चार्जेस का वोचर जनरेट करना था। उसमें कंडीशन यही थी कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस यकमुश्त अदा करने हैं। अभी चूंकि डेवलपमेंट चार्जेस का शेड्यूल आ गया जो कि 26 लाख रुपए एक किनाल का है, तो उस पर वो डिस्काउंट भी ऑफर किया गया, जो कि हर DHA करता है कि अगर आप यकमुश्त डेवलपमेंट चार्जेस देंगे तो इतने % आपको डिस्काउंट है। तो अर्ली बर्ड के डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो डिस्काउंट के बाद 23.5 लाख रुपये ऑफर किए गए, जो कि यकमुश्त हमने देने थे, और सिर्फ 4 दिनों के अंदर वो 1500 प्लॉट बुक हो गए। और आज हम अर्ली बर्ड को एज ए रेफरेंस प्राउडली लोगों को बताते हैं। अब हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि चमन स्कीम में क्या रेट है, चिल्टन स्कीम में क्या रेट है, जरगून का क्या रेट है, कैंट में कोयटा में क्या रेट है। अब हमारे पास एक रेफरेंस है जो कि बिल्ट इन है, जो कि DHA कोयटा के अंदर है और वो अवेलेबल है, जो कि आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन 1,45,00,000 से लेकर
कोई 1.5 करोड़ के करीब इस मार्केट में सेल हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ज़ाहिर है इसमें आजकल ये क्वेश्चन भी आता है कि सर DHA कोटा में सिर्फ एक अर्ली बर्ड ही तो नहीं है, बाकी जो एफिडेविट्स हैं जो इस वक्त तकरीबन 50 लाख की ब्रैकेट में है, जो एलोकेशन है 50 लाख की ब्रैकेट चल रही है प्राइस आज की एवरेज, तो वो भी तो अगर ज़ाहिर है कोटा DHA के अंदर ही आएंगे, तो ये भी तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो मैं उनसे कहता हूँ बिल्कुल ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि आपको ये नहीं पता कि वो किस सेक्टर में निकले, ठीक है। आप थोड़ा सा आप यानी अपनी लक पर खेल रहे हैं कि जो आपकी लक होगी उसके मुताबिक आपका सेक्टर कहाँ निकलता है। लेकिन DHA कोयटा का जो अर्ली बर्ड है इसके बारे में डे फर्स्ट से बता दिया गया था कि ये गेट के नज़दीक तरीन अलॉट किया जाएगा और फिर कुछ ही टाइम के बाद हमें इसका प्रॉपर नॉट टू स्केल मैप सेक्टर का दिया गया, जिसमें दिखाया गया कि इस साइड पर अर्ली बर्ड है जो कि आजकल A3 का एरिया कहलाता है, और इस वक्त A3 में भी डेवलपमेंट हो रही है, A2 में भी हो रही है, A1 में भी हो रही है। और मैं आपकी वीडियोस भी बड़े शौक से देखता रहता हूँ जहाँ आप हमें कोयटा के हवाले से अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए देखें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे लिए ज़ाहिर लाहौर से हर दूसरे दिन कोयटा जाना बहुत मुश्किल है, तो आप जिस तरह वहाँ के मकामी हैं, लोकल हैं, तो हमारे लिए और ख़ास तौर पर ओवरसीज क्लाइंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके जैसा बंदा हमारे पास मौजूद है जो हमें वक्तन फक्तन अपडेट करते रहते हैं कि वहाँ ये डेवलपमेंट चल रही है। हर प्रोजेक्ट के अंदर देखें, जिस प्रोजेक्ट को भी हम रिकमेंड करते हैं उसमें जो सबसे चीज़ हमें नोट करनी होती है, ज़ाहिर है एक तो ब्रांड, प्रोजेक्ट की सेफ्टी सिक्योरिटी, वो DHA में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि वो सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छी है। अब जो चीज़ हमें इसके बाद देखना है सेकंड स्टेप, वो ये कि डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमें पता है कि DHA में डेवलपमेंट जो है इट्स गोइंग ऑन। मैं बिल्कुल DHA कोयटा की डेवलपमेंट से मुतमिन हूँ। हालांकि कोयटा के हालात के बारे में भी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उसका इमेज इस तरह का बनाया गया है, ऐसा हालात वहाँ इतने ख़राब भी नहीं है जितने बताए जाते हैं। और कोयटा में थोड़ा सा एक ऑफ सीज़न आता है जो कि स्नोफॉल का है, और इसी वजह से मैं दोस्तों को ये भी बताता जाऊँ कि DHA कोयटा जो है वो पहला DHA है जो विद स्नोफॉल होगा। इस्लामाबाद में भी कभी कभी बर्फबारी इस शक्ल में शायद पड़ी हो किसी साल के अंदर, लेकिन कोयटा में तो एक रेगुलरिटी है, तकरीबन हर साल ही वहाँ बर्फबारी होती है। और DHA कोयटा इंशाल्लाह जब बनेगा तो ये पहला पाकिस्तान का DHA होगा जो स्नोफॉल के साथ होगा। तो उस टाइम लाइन में थोड़ी सी डेवलपमेंट रूट स्लो होती है, लेकिन DHA की जो अभी तक करंट डेवलपमेंट है उसमें जो दोनों कमर्शियल बिल्डिंग है और सेंटर में जो ग्रैंड एंट्रेंस है, और ये भी DHA कोयटा पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। इससे पहले किसी भी DHA के डेवलपर का तरीक़ेकार क्या है कि वो गेट खड़ा कर देता है, फिर रोड बना देता है, लेकिन लाइफ नहीं आती। लाइफ क्यों नहीं आती? कि जब तक वहाँ पोजेशन नहीं आएगा। लेकिन DHA कोयटा इस कॉन्सेप्ट के साथ आया है कि ये बिल्डिंग इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है इस साल के आखिर तक या 2022 के मतलब सेकेंड क्वार्टर तक ये बिल्डिंग ऑपरेशनल हो चुकी होंगी और इन बिल्डिंग के अंदर ऑफिस खुल चुके होंगे। इंशाल्लाह DHA का दफ्तर भी वहाँ आ चुका होगा उस टाइम, और फिर जितने लोग ट्रांसफर के लिए आएंगे वो भी उनको देखने का मौका मिलेगा, साइट को देखने का मौका मिलेगा। ये बड़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजी होती है किसी भी डेवलपर की तरफ से कि वो अपने प्रोजेक्ट का जो ट्रांसफर ऑफिस है उसको साइट पर ले जाए, क्योंकि सेलर और बायर अमूमी तौर पर हमारे यहाँ अकेले नहीं आते, साथ में 2-4 रिश्तेदार भी होते हैं, फैमिली के 2-4 बंदे भी होते हैं, कभी घर की लेडीज भी साथ होती हैं। तो वो जब आके देखती हैं तो उनको और भी ज़्यादा खुशी होती है और भी ज़्यादा उनका ज़हन बनता है कि हम यहाँ पर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मौके के ऊपर डेवलपमेंट नज़र आ रही है। और ये जो दोनों बिल्डिंग हैं इसके फीचर जो हैं आप बाद में भी हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पर बैंक भी होंगे, इसमें मार्केट भी है, इसमें बैंकेट हॉल भी होगा, इसके अंदर ऑफिस भी हैं, इसके अंदर बाहर एक पेट्रोल पंप भी होगा, तो इसके अंदर कॉफ़ी शॉप भी हैं, इसके अंदर बच्चों के लिए प्ले एरिया भी होगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिस भी होंगे, छोटी शॉप भी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें इन बिल्डिंग में आएंगी। इसका मतलब ये है कि ये DHA कोयटा पहली दफ़ा एक कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है कि मेन बुलेवार्ड और गेट बनते ही लाइफ शुरू, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, एक बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। इससे पहले DHA मुल्तान ने गेट बना दिया, बुलेवार्ड बन गया, जब तक पोजेशन नहीं आया तब तक किसी किस्म की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। DHA भावलपुर है, मैं नए DHA को डिस्कस कर रहा हूँ, किसी किस्म की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, गेट बन गया, बुलेवार्ड बन गया, DHA पेशावर। लेकिन DHA कोयटा जो है वो उस कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, ग्रैंड एंट्रेंस का कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि DHA कोयटा जो है स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट, और पाकिस्तान का ये पहला स्मार्ट सिटी है जो कि DHA कोयटा स्मार्ट सिटी फेज 1 इस वक्त बन रहा है। सर व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं, आपने कैनाल का बता दिया, डिपट का बता दिया, सर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 16 मरला क्या फ्यूचर, उसका क्या फ्यूचर सर आप देख रहे हैं? बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि इस हवाले से जब भी हमारी कभी डिस्कशन हुई हैं तो DHA कोयटा जो है
वो बेसिकली एक चीज़ हमें समझनी होगी कि पुराने DHA का ट्रेंड ये रहा है कि ये एक किनाल का ब्रांड कहलाता है। इन जनरल DHA जितने भी आप देखेंगे लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनमें ये चीज़ रही है कि ये एक किनाल का प्रोजेक्ट कराता है। इसमें वो लोग ज़्यादा रहते हैं जो एक किनाल वाले हैं और एक किनाल का प्रोजेक्ट, और एक किनाल की कंस्ट्रक्शन जो है आज के इस महंगाई के दौर में हर आदमी के लिए करना मुश्किल है। प्लॉट की प्राइस तो अभी भी कम है, जैसे DHA कोटा इस वक्त भी 50 की रेंज में चल रहा है और एक वक्त में 22 में भी था। तो यकीनी तौर पर प्लॉट अगर किसी ने 22-23 में लिया और 26 लाख के वो डेवलपमेंट चार्जेस भी दे देगा तो तब भी उसको 50 से कम पड़ता है प्लॉट, या 50 से करीब पड़ रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो उसको एक किनाल के एरिया में करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली है। तो छोटे यूनिट्स का लाना जो है ये मैं समझता हूँ DHA की एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और DHA ने इस मॉडल को सक्सेसफुली अप्लाई किया था लाहौर के अंदर पहले दफा फेज 5 में, जब डेडिकेटेड ब्लॉक जो है वो 10 पर लेके और 5 मरले का कुछ पोर्शन जो है वो ब्लॉक में दिए गए। वरना अमूमी तौर पर DHA के आप पुराने फेज देखेंगे लाहौर के तो ये बेसिकली इट स्टैंड फॉर 1 किनाल पर। और इसी तरह मुल्तान के अंदर 2 सेक्टर हैं पूरे, सेक्टर PT ये डेडिकेटेड है फॉर 5 मरला, और सेक्टर V जो है ये 8 मरला और 5 मरला के लिए डेडिकेटेड है। इसी तरह सेक्टर D1 है, उसके अंदर सिर्फ 10 मरले के प्लॉट है। इसी तरह सेक्टर U में डेडिकेटेड एरिया है DHA मुल्तान में, जिसमें 10 मरला और किनाल की कैटेगरी, लेकिन एक डेडिकेटेड एरिया असाइन किया गया जहाँ पे सिर्फ 10 मरला कैटेगरी। इसी तरह 9 प्रिज्म में DHA में आगे आप देख रहे हैं कि 5 मरला और 10 मरला के ब्लॉक असाइन किए गए। तो इसी तरह DHA कोयटा जो है वो भी 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के डेडिकेटेड ब्लॉक जो है वो इंशाल्लाह आगे लेकर आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोयटा के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि 5 मरले के प्लॉट जो है वो इंतहाई इकोनॉमिकल प्राइसेस पर ऑफर किए गए थे। आजकल तो ज़ाहिर है उनका रेट बहुत अच्छा है मार्केट में, लेकिन जब ये 2020 में मार्च में इनकी बैलेटिंग हुई थी तो ये बहुत मुनासिब कीमतों पर 4 मरले का कमर्शियल जो है DHA कोयटा ने 1 करोड़ 14 लाख रुपए में बुक किया है, जो कि वैसे ही इकोनॉमिकल है, और उस वक्त 3 से 5 लाख प्रॉफिट पर ये सेल हुआ है, जिसकी आज मार्केट में डिमांड जो है वो 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट की जा रही है। तो इसी से हमें अंदाजा हो सकता है कि DHA का प्रोजेक्ट जो है वो कितना अच्छा रहा है कोयटा का, कि विद इन 2 ईयर्स उसने कितना अच्छा लोगों को रिटर्न दिया। सर बिल्कुल, मेरा सवाल उसके बाद यही था कि कमर्शियल, अगर आप देखेंगे मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था जो कमर्शियल का व्यू जो इन्होंने दिया है स्टार्टिंग से लेकर राउंड अबाउट तक, सर कमर्शियल को आप आने वाले सालों में कहाँ देख रहे हैं और अभी आप किधर देख रहे हैं?